Hello students, I, Mahendra Thomre, Assistant Professor of Department of Chemistry, G Society Denby Mehta, Science and Commerce College, Bordi. I am teaching you chemistry paper 1 of that is the organic chemistry of SYBSc, and this is our semester 4, and this is the part 3 lecture of unit 3. That is the name of unit is carboxylic acids and their derivatives, and that we have to study the new topic, that is the derivatives of carboxylic acids. So next topic is the derivatives of carboxylic acids. So derivatives of carboxylic acid में क्या होगा? In the structure of carboxylic acid, if OH group is replaced by halogen, carboxylic acid में OH group is replaced by halogen, that is Cl bromine atoms. So amino group carboxylic group OCOR or alkoxy group OR, the acid derivatives are called acid halide or amide or anhydride, and esters are obtained. So let's start the first reaction, that is acid halide. So acid halides में क्या होता है? RCOX, X लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये X वो कुछ भी हो सकता है, Cl ब्रोमीन. In common as well as IUPAC name letters, IC is replaced by YL and word acid is replaced by halide. तो यहाँ पर क्या है, एसिड की जगह पर Cl लगाया, यहाँ पर क्या हो गया, ये इथेनॉइल क्लोराइड या तो एसिटिल क्लोराइड. यहाँ पर क्या है, मिथेनॉइल क्लोराइड या तो फॉर्मिल क्लोराइड. OH की जगह पर हमने लगाया सिर्फ Cl. हियर आल्सो OH की जगह पर हम Cl लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड या तो प्रोपिनिल क्लोराइड. Next is the formation of acid halides. So let's see one by one formation of acid halides. So acid halide की पहली स्टेप है by heating with thionyl chloride. Thionyl chloride मतलब SOCl2 in presence of pyridine. तो pyridine के प्रेजेंस में हमने जब thionyl chloride एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड लिया एग्जांपल, देन SOCl2 के साथ उसकी रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ दिस वन pyridine. ये क्या है, pyridine C5H5N, दैट इज pyridine. तो pyridine और SOCl के साथ अगर रिएक्शन हुई तो क्या फॉर्म होगा, दिस OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, हियर Cl plus SO2 and HCl will be removed. So क्या होगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन इन बेंजोइल क्लोराइड. Second one is this one second, by heating with phosphorus pentachloride, PCl5 acetic acid, this one is the CH3COH acetic acid is reacted with phosphorus pentachloride. So same OH is replaced by Cl. Here OH is replaced by this one Cl, and POCl3 and HCl will be removed. Then third reaction is for formation of acid halides are by heating with carbonyl chloride or phosgene. Carbonyl chloride or phosgene, that means ClCOCl or oxalyl chloride. That is the oxalyl chloride, that is ClCOCl. So first we have taken a phosgene, reaction of phosgene. Propanoic acid plus phosgene, it will give only replace of this OH with Cl. So propionyl chloride, this is the propionyl chloride, this Cl is attached here, and CO2 and HCl will be removed. Same here is HCOOH, formic acid reacted with oxalyl chloride, this one oxalyl chloride, COCl. So ये भी क्या करेगा, सेम प्रोसीजर, OH is replaced by this Cl, this one Cl, here is Cl, so formyl chloride. So acid halide formation हम
ऑक्सालिल फॉस्फजीन से भी कर सकते हैं, या तो PCl5 से कर सकते हैं, या तो SOCl2 से कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज द बाय हीटिंग विथ रेड फॉस्फोरस इन ब्रोमीन. रेड फॉस्फोरस को ब्रोमीन में हीट करने पर रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ Br2 टू गिव PbR3. फर्स्ट क्या मिलेगा? PbR3 which then reacts with कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट स्टेप ने रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ 3Br2 and formation of 2Br3. So PbR3 is reacted with this acetic benzoic acid, and same here OH is replaced by Br. So here is the benzoyl bromide. This is the formation of acid halide. So next is the ester. So ester में क्या होता है? RCO group are RCOOR dash. So this R and R dash may be aliphatic or aromatic groups. तो ester का फॉर्मूला क्या है? RCOOR dash. In the common as well as IUPAC names, the alkyl group attached to oxygen atom, that is R dash. Here यहाँ पर R dash है जो name is named first. This is followed by the name of the acid, in which later IC is replaced by suffix it. The word acid is dropped. So क्या होता है आयुपैक नेम में? अल्किल ग्रुप अटैच, तो ऑक्सीजन को जो भी ग्रुप अटैच है उसका नाम क्या पहले लिया जाता है, देन फॉलोड बाय उसका एसिड का नाम, और उसको लेटर को IC के बदले रिप्लेस किया जाता है 8 से. by acid. So formation of esters by one method by acid catalyzed esterification. So first method is acid catalyzed esterification, and ester is obtained by refluxing carboxylic acid. ये carboxylic acid है, by refluxing with excess of alcohol. मतलब ये excess of alcohol मतलब ये excess लिया हमें alcohol in presence of acid. This one acid. So formation of RCOOR dash. So ये जो R एक्सेस OH का R डैश ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? इस H को रिप्लेस कर देगा OH के. It replaces with this one H को OR dash, this one plus H2O. The reaction is, so क्या फॉर्मेशन हुआ एसिड का एस्टर्स में? ये जो दूसरा R डैश OH का जो R डैश है वो क्या करेगा? OH वो O की जगह H की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा. The reaction is slow and reversible, hence it is carried out in presence of concentrated H2SO4. ये रिएक्शन H2SO4 concentrated के साथ क्यों किया जाते हैं? क्योंकि ये स्लो है और रिवर्सिबल भी है, या तो इसको ड्राई सेल के साथ कर सकते हैं. So during esterification, large excess of alcohol should be used and water should be continuously removed to shift the equilibrium to right. Right मतलब कहाँ पर? इस साइड में, ये राइट है और ये साइड की लेफ्ट है, ऑपोजिट साइड में उसके. तो वो ज्यादातर हमें राइट साइड का ये ईस्टर का प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सेस अल्कोहल यूज करना पड़ेगा. मतलब ये एक्सेस क्यों लिया है? क्योंकि हमें रिएक्शन राइट साइड में चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें ईस्टर फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म चाहिए. और वाटर जो भी है वो हमें उसको रिमूव करना चाहिए. क्यों? बिकॉज water should be continuously removed to shift the equilibrium to right. The acid catalyzed esterification is known as Fischer esterification. So acid catalyzed esterification को क्या कहते हैं हम? ये concentrated H2SO4 लिया है acid catalyzed, so इसको क्या कहते हैं? Fischer esterification. और वाटर को हम क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि उसका एस्टर के साथ रिएक्शन हो सकता है. दैट इज व्हाई वी आर कंटिन्यूअसली रिमूविंग वाटर. And formation of ester by Fischer, and it is known acid catalyzed esterification को क्या बोलते हैं? Fischer esterification. So first acetic acid we have taken, then example of C2H5OH.
So when phenol, here is phenol, when it is reacted with this acetic acid, this H will be removed and this group, this OH completely this removed, and this OC2H5 group ये यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर कार्बोनिल पर लग जाएगा। सो वहां पर क्या फॉर्म होगा, OC2H5 प्लस H2O, H2O क्या रिमूव हो जाएगा उसमें से। देन दिस इज द benzoic acid plus methanol, so it will give this methoxy group is attached to this carbonyl group and this OH will be removed. So here is methyl benzoate, benzoic acid का methyl benzoate form होगा, that is the ester. So next is the second one is the esterification by alkylation. So esterification by alkylation कैसे होता है? So we see in this method esterification, the sodium salt of the carboxylic acid is treated with alkyl halide. ये सोडियम सॉल्ट है CH6H5CONA, सोडियम सॉल्ट है ये रिएक्ट विथ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड मतलब हमने यहाँ पर ये रिएक्शन लिए इथिल, इथिल ब्रोमाइड। अल्किल हैलाइड मतलब कोई भी हैलाइड और अल्किल ग्रुप, तो यहाँ पर हमने इथिल एंड ब्रोमीन लिया है। टू गेट एन ईस्टर हियर द कार्बोक्सिलेट आयन एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो ये कार्बोक्सिलेट आयन मतलब CO नेगेटिव क्या कर रहा है यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो ये अटैक कर रहा है यहाँ पर C2H5 पर। Here the carboxylic ion acts as the nucleophile, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहे हैं। and there is a nucleophilic substitution, that is SN2 reaction at the alpha carbon atom of the alkyl halide. This reaction can be considered as orthoalkylation. तो यहाँ पर क्या हो गया, इथिल बेंजोएट, इथिल ब्रोमाइड अटैक हियर एंड Na की जगह पर क्या लग जाएगा, सोडियम सॉल्ट की जगह पर ये ग्रुप C2H5 ग्रुप लग जाएगा। So ethyl benzoate formation होगा। So this reaction can be considered as a orthoalkylation. Hence only primary alkyl halides are suitable for this method for esterification. जो प्राइमरी है वही इसमें esterification में मेथड में यूजफुल है। The sodium halide dissolves in a ester to be some extent. जो सोडियम हाइलाइड डिसॉल्व करेंगे हम ईस्टर के साथ तो क्या होगा, hence if the silver salt of carboxylic acid is used, उसके जगह पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। दैट इज द वी हैव टेकन हियर सिल्वर बेंजोएट, यहाँ पर सिल्वर ले लिया हमने। देन द insoluble silver halide is formed which can be easily removed. सो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, यहाँ पर क्या हुआ, सिल्वर की जगह पर क्या लग गया, ये ग्रुप लगेगा और सिल्वर क्लोराइड विल बी रिमूव्ड एज अ प्रेसिपिटेट। सो वो इजीली रिमूव हो सकता है एज कंपेयर टू सॉल्ट। सो दैट इज व्हाई हियर इज यूजिंग अ सिल्वर salt. So this is the esterification by alkylation. So this is the acid. Third one is the acid anhydride. So R may be aliphatic or aromatic. So इससे हम ester कैसे फॉर्म करेंगे, this third step acid anhydride से in the common as well as IUPAC names of the carboxylic acid, the word acid is replaced by anhydride. So by heating a carboxylic, first one is the formation of anhydride में by heating a carboxylic acid with P2O5. So two molecules of acid combined by eliminating molecule of water to give acid anhydride. So यहाँ पर लिया हमने
RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको P2O5 के साथ रिएक्शन किया हमने। सो P2O5 के साथ क्या हो जाएगा उसका, ये जो H है यहाँ पर का OH का, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये OH रिमूव हो जाएगा। सो ये तीनों के तीनों दैट इज 2H2O ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से P2O5 के साथ रिएक्शन करने से। सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा फिर, दिस कंपाउंड दैट इज RCOOCOR plus 2HPO3 will be removed. Same as we have taken a acetic acid, 2 acetic acids plus P2O5, same reaction, only this one is attack here and simultaneously this OH will be removed. So there is remove of H2O, this H remove of this H and this OH, this OH. The formation of this CH3CO CH3 दैट इज क्या हो जाएगा, अनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड। दो एसिटिक एसिड के साथ हमने किया तो, या तो इसको इथेनॉइक अनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड से हमने क्या किया, एसिटिक अनहाइड्राइड फॉर्म किया। सेम यहाँ पर ऐसे ही बेंजोइक एसिड, दो बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन किया P2O5 के साथ, सो वो भी सेम यहाँ पर बीच में इन बिटवीन दिस ऑक्सीजन रह जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा और उसको P2O5 के साथ पूरा 2HPO3 रिमूव हो जाएगा। सो बेंजोइक एसिड से हमें क्या मिला, ये बेंजोइक एसिड से बेंजोइक अनहाइड्राइड we have getting the dicarboxylic acid form a cyclic anhydride। अगर हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे सक्सिनिक एसिड हमने लिया, तो सक्सिनिक एसिड हम अगर लिया P2O5 के साथ उसकी रिएक्शन की, तो उसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉन्ड यहाँ पर दिया हुआ है CH2 ये बॉन्ड। सो ये दूसरे साइड से अगर वो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इस ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगी, तो ये OH रिमूव हो जाएगा। सो ये यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा वो अटैक करने के बाद। सो ये क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन, तो सक्सिनिक अनहाइड्राइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर थैलिक फॉर थैलिक एसिड, दिस वन इज द थैलिक एसिड। सो थैलिक एसिड आल्सो सेम P2O5 रिएक्शन करने के बाद उसको बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा एंड थैलिक अनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। सो एसिड टू अनहाइड्राइड, हियर we have completed how acid to anhydride we can form by P2O5 and by heating. Second one, by using a sodium salt of carboxylic acid। sodium salt of carboxylic acid से हम कैसे कर सकते हैं, when sodium salt of carboxylic acid is heated with acid chloride and acid anhydride is obtained। ये हमने आगे आगे देखने वाले हैं। Then third one, from an ester and an acid chloride। so ester, ये है ester salt of carboxylic acid and sodium salt of carboxylic acid heated with acid chloride। ये एसिड क्लोराइड, ये हमने जो देखा था यहाँ पर, ये एसिड क्लोराइड और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्ट विथ हीटेड, हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली Cl रिमूव हो जाएगा। So NaCl is byproduct and this O is attack to CO R, CO और R ही, मतलब ये पूरे के पूरे ग्रुप पे अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन वहां पर लग जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। देन सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट जब हम हीट करेंगे प्लस एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड और सोडियम एसिटेट हीट करने के बाद क्या होगा, सेम ये हम यहाँ पर अटैक करेंगे और यहाँ पर Cl, ये Cl रिमूव हो जाएगा।
तो NaCl इज बाय प्रोडक्ट एंड एसिटिक क्लोराइड से हमें क्या मिलेगा, एसिटिक अनहाइड्राइड. हियर आल्सो सोडियम बेंजोएट, हियर सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइल क्लोराइड. एक सॉल्ट और एक क्लोराइड चाहिए हमें, एसिड क्लोराइड. सो हियर आल्सो सेम, this one attack here and this Cl will be removed. So NaCl is byproduct and this benzoic anhydride is the product. Same, when an organic ester is heated, when organic ester is heated with acid chloride, कोई भी ऑर्गेनिक ईस्टर को हमने अगर एसिड क्लोराइड के सॉल्ट की जगह पर हमने अगर कोई ऑर्गेनिक ईस्टर लिया तो और एसिड क्लोराइड के साथ हीट किया तो एसिड अनहाइड्राइड इज ऑब्टेन. फिर भी हमें एसिड अनहाइड्राइड ही मिलेगा. हियर इज द एग्जांपल, ऑर्गेनिक ईस्टर प्लस एसिड क्लोराइड. सो यहाँ पर रिएक्शन सेम वैसे ही होगी, ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा एंड ये Cl R डैश Cl, मतलब ये Cl और ये इसका ये जो R डैश है ये बोथ आर रिमूव्ड एज अ बाय प्रोडक्ट और यहाँ पर एसिड अनहाइड्राइड फॉर्म होगा. देन मिथिल एसिटेट, मिथिल एसिटेट, here we have taken example methyl acetate and acetyl chloride. तो जैसे हमने यहाँ पर देखा है सेम वैसे ही ये यहाँ पर अटैक करेगा CO पर एंड ये Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो CH3, ये यहाँ का CH3, ये वाला CH3 और ये Cl, यहाँ का Cl, ये दोनों बाय प्रोडक्ट निकल जाएंगे और यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा एसिटिक अनहाइड्राइड. So this is the formation of anhydride. So next is the acid amides. So acid amides formula is RCONH2. R can be aliphatic or aromatic. In the common name of the acid, the letters IC is replaced by word amide. In IUPAC name of the acid, the letter OIC is replaced by word amide. तो OIC IC की जगह पर क्या होगा, अमाइड. एंड IUPAC नेम में क्या होगा, OIC की जगह पर क्या हो जाएगा, अमाइड. इन बोथ केसेस द वर्ड एसिड इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द नेम, मतलब एसिड ये नेम ड्रॉप हो जाएगा एसिड अमाइड्स में. So formation of amides, here you have to take a formation, start a formation of amides. So first one is the from ammonium salt. A carboxylic acid reacts with aqueous NH3, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ये लिया, उसके रिएक्शन की एक्वियस NH3 के साथ, गिव अमोनियम सॉल्ट, हमें क्या मिला उसका, अमोनियम सॉल्ट, ये वाला. व्हेन ड्राई अमोनियम सॉल्ट इज डिस्टिल्ड एंड अमाइड इज ऑब्टेन, इसको डिस्टिलेशन या हीट करने के बाद क्या हो जाएगा हमको, वहां पर अमाइड ओनली ONH4 प्लस ये जो हुआ है सॉल्ट फॉर्मेशन, उसमें सिर्फ हमें NH2 ही रह जाएगा वहां पर, दैट इज एसिड अमाइड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया गिव्स अमोनिया कार्बोक्सिलेट एंड कार्बोक्सिलेट व्हेन हीटेड टू गिव एसिड अमाइड. देन बेंजोइक एसिड प्लस NH3, सो बेंजोइक एसिड प्लस NH3 क्या हो जाएगा, ONH4 प्लस हो जाएगा ये. देन उसको हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, NH2 रह जाएगा सिर्फ यहाँ पर NH2. तो बेंजोइक एसिड से अमोनियम बेंजोएट एंड देन बेंजामाइड मिलेगा हमें. बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड अमाइड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, ये अमोनियम सॉल्ट से मिलेगा हमें. Second, from acid chlorides. This one from acid chlorides. The acid chloride is heated with excess of ammonia. So ये acid chloride हमने लिया, heated with excess of ammonia. ये अमोनिया के साथ रिएक्शन किया to get a acid amide. ये क्या हमें मिला, Cl की जगह पर क्या हो गया, यहाँ पर NH2 लगी जाएगा, तो वो हो जाएगा acid amide plus NH4Cl is formed. So HCl form is absorbed by the excess of NH3. तो NH3 HCl जो फॉर्म होगा वो NH3
एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां पर क्या होगा, NH4Cl हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। सेम एग्जाम्पल फॉर प्रोपियोनिल क्लोराइड प्लस NH3, इट विल गिव हियर Cl की जगह पर क्या मिलेगा, NH2 and NH4Cl will be removed. So propionyl chloride से क्या मिलेगा, propionamide. Same here, benzyl chloride reacted with 2NH3 अमोनिया। So यहाँ पर क्या होगा, ये Cl रिप्लेस हो जाएगा अमोनिया के साथ, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा बेंजामाइड। When the acid chloride of dicarboxylic acid is treated with ammonia, a cyclic imide is obtained. So acid chloride हमने अगर लिया जैसे थैलिक एसिड जैसे फॉस्फेट लिया हमने, एसिड क्लोराइड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और एक डाइकार्बो एसिड क्लोराइड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने, डाइकार्बोक्सिलिक दो COH ग्रुप है इसको, तो थैलिक एसिड को, तो ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और फॉस्फेट जैसे एसिड क्लोराइड हमने लिया, सो क्या होगा, ट्रीटेड विद अमोनिया, साइक्लिक इमाइड इज ऑब्टेन। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसका थायोनिल क्लोराइड मिल जाएगा, ये OH की जगह पर दोनों भी Cl लग जाएंगे, ये OH जो है यहाँ पर, ये OH और ये OH बोथ गेट Cl, सो ये हो गया थायोनिल क्लोराइड। सो एसिड क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, अमोनिया के साथ। सो अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा कार्बोनिल पर, और साइमल्टेनियसली ये रिमूव हो जाएगा। सेम वैसे ही ये इस साइड को भी अटैक करेगा, यहाँ इस कार्बोनिल पर अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये भी Cl रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ये NH दोनों बाजू से वन हाइड्रोजन इज वन बॉन्ड तैयार हो जाएगा, वन हाइड्रोजन NH3 का। तो ये और ओनली वन H इज रिमेनिंग हियर, और ये 2HCl विल बी रिमूव्ड। सो थैलोनिल क्लोराइड से क्या मिल गया हमें, थैलीमाइड मिल गया। नेक्स्ट वन फ्रॉम एसिड अनहाइड्राइड्स और ईस्टर्स, थर्ड वन फ्रॉम एसिड अनहाइड्राइड्स और ईस्टर्स। तो एसिड अनहाइड्राइड में कैसे मिलेगा हमें, व्हेन एसिड अनहाइड्राइड इज हीटेड विद अमोनिया, एसिड अनहाइड्राइड को हमने हीटेड किया एसिड अमाइड के साथ, सॉरी अमोनिया के साथ, सो वो क्या हो जाएगा, एसिड अमाइड, ये यहाँ पर से ब्रेक हो जाएगा और अमोनियम कार्बोक्सिलेट यहाँ पर NH2 लग जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा अमोनिया, सो NH2 वहां पर लग जाएगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा। सो एसिड एनहाइड्राइड से हमें क्या मिलेगा, एसिड अमाइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड में भी वैसे ही होगा, यहाँ पर हमें NH2 लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पर NH2 का अटैक कहाँ होने वाला है, दोनों में से एक ग्रुप पर। सो यहाँ पर हमने अगर अटैक किया तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा। सो ये यहाँ पर ब्रेक होने के बाद ये NH2 यहाँ पर लग गया, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड का क्या हो गया, बेंजामाइड और अमोनियम बेंजोएट, सेकेंड बाय प्रोडक्ट इज अमोनियम बेंजोएट। सिमिलरली व्हेन ईस्टर इज हीटेड विद अमोनिया, जब ईस्टर को हमने अमोनिया के साथ हीट किया, एसिड अमाइड एंड अल्कोहल आर ऑब्टेन, सो क्या हो जाएगा, सेम ये अमोनिया यहाँ पर अटैक करेगा और ये OR यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो ROH is byproduct and
RCONH2 मतलब amide is formed. सेम फॉर इथिल बेंजोएट. इथिल बेंजोएट को भी हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पर NH2 लग जाएगा और ये C2H5OH हो जाएगा, मतलब इथिल अल्कोहल बाय प्रोडक्ट निकलेगा और इथिल बेंजोएट का बेंजामाइड हो जाएगा. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स.